814 व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सभा में आपका स्वागत है। 814 ट्रूथ ऑनली टर्म्स सभा भी है ये, और 814 लेबर पार्टी ऑफ इंडिया का भी सेशन है। इसके ज़रिए स्वरोजगारी सरकारी नौकरी लाने का प्रयास किया जा रहा है। भारतीय संसद भवन में ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट एक्ट बिल 2001 शानपुर पारित हो, जो कि अमितेश्वर झा अमित कुमार झा द्वारा लिखा गया है। साथ साथ जनता के बीच में रह के इसके तहत एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट विज फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी per day fiscal credit, constant validity on income work per day fiscal credit is fundamental right, direct link to ministry and budget. We should be preamble wise organized employed, preamble wise organized self-employed. There should be 3 budget system: annual budget, one unit ministry, railway budget, one ministry, and organized self-employment ministry and budget. 4 slab pension 18, 32, 46, 58 year, and per month fiscal credit salary. Our constitutional life should be between 0 to 18 years if required, and 18 to 58 years for all by self-funding, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month swing. There should be 3 budget system. Our constitutional life should be between 0 to 18 years and 18 to 58 years by self-funding, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month swing. When we are showing our self-income, certain cash, certain fiscal credit, we will be getting fiscal credit salary on that. Fiscal credit salary is not in cash form, but on that fiscal credit, which is constitutionally acclaimed, on that per month pension, gratuity, provident fund, dearness, allowance, ministerial benefit is made. Suppose if we are getting 10,000 fiscal credit salary, means 10% of 10,000, 1,000 is automatically saved in your account, 1,000, and by the pension fund of direct welfare, it will be changed into pension fund. So these are the changes which we have made in the organized self-employment ministry, means regularize income, because 90% of the people are not having capital in India, and regular income is a Himalayan task for them, and therefore we are undeveloped or developing state, always in this position that our employment is always in danger, means whenever we are working, it is always subordinating that it is bound to be thrown out, like this situation is there. So better, means as we were living in the pre-British period, at that time the same situation was there, how that the government will be taking us into custody for anything. Similarly, this though we have got right, but the employment problem is still alive. So we have made this organized self-employment ministry and budget. In this 6 Rashtrapati Bhavan is there: Shiv Parvati Rashtrapati Bhavan, that is Kailas Rashtrapati Bhavan; Vishnu Lakshmi, Ram Sita, Krishna, Navita Vilasa, all Vishnu Lakshmi Avatar Rashtrapati Bhavan, that is Vaikunt Rashtrapati Bhavan; then Brahma Saraswati Rashtrapati Bhavan, that is ISBN Rashtrapati Bhavan. ISBN certificate of truth only terms is 8190186402X, and copyright number is 954/03/COL, and registration number is 1799/03. And then we have the Adi Shakti Jagadamba Rashtrapati Bhavan. Then we have the each United Varshkrit Goddess Rashtrapati Bhavan, and then Hindu government is Rashtrapati. 6 more Rashtrapati Bhavan we have based on the Mandir documents of minority. So we are giving self-employment government job in this administration. So we have made Mandir as a Rashtrapati Bhavan. Yes, of course the name are different because sovereignty is different. Like Shiv Mandir sovereignty is going in Kailas, Shiv Parvati, and the Vaikunt Rashtrapati Bhavan is going in Vaikunt. Similarly, the Rashtrapati Bhavan which is in New Delhi, which we have made, it is showing the sovereignty to the people. So we have to understand that direct ministry and budget connection should be done.
We have also made employment equilibrium point 40,000 per month above in cash and 40,000 per month below in cash, and based on that we have arranged this. So on that basis, presently 70% of the people are 40,000 per month below in cash and 30% are 40,000 per month above in cash. तो इस प्रकार से हम लोग व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण में लगे। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फीस्ट ऑफ द हैंड का साथ दें। 31 अगस्त 2001 से निरंतर लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फीस्ट ऑफ द हैंड के साथ आपके दरवाजे पर खड़ी। इसका साथ दें और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी लाने में इसकी सहायता करें। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फीस्ट ऑफ द हैंड के साथ काम कर रही है। 40,000 से ऊपर जाने का भी रास्ता इसमें बनाया गया है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट को आधार माना गया है। अभी तक भारतवर्ष में एजुकेशनल सर्टिफिकेट का सम्मान नहीं है। आपका पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट है और नॉलेज को अगर एक्लेम नहीं किया गया है, यानी कि गवर्नमेंट जॉब आपने नहीं क्वालिफाई किया या फिर प्राइवेट सेक्टर में आपको अगर सम्मानित करके जॉब नहीं दिया गया है तो बहुत परेशानी है, क्योंकि एजुकेशनल सर्टिफिकेट का तब फिर कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों ने एजुकेशनल सर्टिफिकेट को महत्व बनाया है। अच्छा, जिनके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट नहीं है उनका क्या सब होगा? तो जिनके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट नहीं है उनको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क का सर्टिफिकेट देते हैं, क्योंकि वो सांस तो ले रहा है, काम तो करेगा कुछ ना कुछ, तो उसमें हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क। और ये सर्टिफिकेट के साथ ही पर डे फिजिकल क्रेडिट बेच चालू हो जाता है। और 40,000 से ऊपर जाने के लिए 10 MA डिग्री, 10 PhD डिग्री, 10 MPhil डिग्री प्राप्त करके व्यक्ति 40,000 से ऊपर इन कैसे जा सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग इसका प्रबंध करते हैं। इसके अलावा ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब है। ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब के तहत एक भी व्यक्ति 401 रुपये में खरीद सकता है। मोबाइल व्हाट्सएप के ज़रिए अपना पार्सल के ज़रिए ले सकता है। और अगर 6 भाग हैं इसके, तो 6 भाग खरीदना हो तो 2401 रुपये में 6 भाग उपलब्ध हैं, जिसको आप पार्सल के ज़रिए मंगवा सकते हैं। मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर OSMB ऑफिस नंबर 6397360717 और ईमेल एड्रेस osemboffice2001@gmail.com। देखिए, जब तक आपका समर्थन नहीं होगा कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसे ही सेशन करते हुए हम लोग गुजर जाएंगे और फिर आप लोग ऐसे ही फिर रह जाइएगा। तो अगर आपको रोजगारी की आवश्यकता है तो इस पर काम करके एक साथ जुटकर अमितेश्वरवाद को लाना ही पड़ेगा भारतवर्ष में। इसके अलावा एनुअल फंक्शन है 16 फरवरी से 26 फरवरी, 28 मई से 6 जून, 31 अगस्त से 11 सितंबर और 28 नवंबर से 7 दिसंबर। इसके तहत जो है 12 बार 6 पेयर ऑफ मूर्तियाँ बनाई जाती हैं और फिर प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि किया जाता है। उसके बाद श्रृंगार और उसके बाद जो है 10 दिन तक वर्ष की ज्योति पूजा होती है और 10वां दिन इसको विसर्जित कर दिया जाता है। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अपना कार्य करते रहती है। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का और भी व्यवस्था है जिसके तहत ये काम कर रही है। तो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का जो है आप ट्विटर पर भी देख सकते हैं, जहाँ अमित कुम 68022607 और जो है सो ब्लॉग में भी देख सकते हैं जहाँ अमित कुमार 77.blogspot.com। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का जो है सो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अपना आरती भी होता है और वो हेड ऑफिस अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407 और मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर OSMB ऑफिस नंबर 6397360717 और ईमेल एड्रेस osemboffice2001@gmail। राष्ट्रपति भवन नंबर 1 में 1 से 6 में शिव पुराण 12, राष्ट्रपति भवन नंबर 1 में शिव पुराण 12, ज्योतिर्मय मंदिर 175 करोड़ मंदिर 12 बनारसी साड़ी 12 नदी प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली टर्म्स। राष्ट्रपति भवन नंबर 2 में विष्णु पुराण रामायण भागवत गीता अमृत पुराण 12, ज्योतिर्मय मंदिर 175 करोड़ ज्योति मंदिर 12 बनारसी साड़ी 12 नदी प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली टर्म्स। राष्ट्रपति भवन नंबर 3 में ब्रह्मा सरस्वती पुराण ISBN पुराण 12, ज्योतिर्मय मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मय मंदिर 12 बनारसी साड़ी 12 नदी प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती ट्रूथ। राष्ट्रपति भवन नंबर 6 में
आदिशक्ति जगदम्बा 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर 12 बनारसी साड़ी 12 ज्योति प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती भवन नंबर 5 में प्रत्येक स्वर्ण वर्ष के भगवान होती 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर 12 बनारसी साड़ी 12 ज्योति प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती भवन नंबर 6 में हिंदू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कैंप में 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ 12 बनारसी साड़ी 12 ज्योति प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती 2000 इस प्रकार से 6 राष्ट्रीय भवन पुष्पांजलि अर्पित करते हुए इसका ध्वज भी है। ध्वज है उजला कपड़ा जिस पर 12 चिन्ह अंकित है। पहला चिन्ह है त्रिशूल मांग में सिंदूर जो कि शिव पार्वती का दृष्टिगोचर है। दूसरा है चक्र मांग में सिंदूर जो कि विष्णु लक्ष्मी राम सीता का दृष्टिगोचर। तीसरा है कमंडल मांग में सिंदूर जो कि ब्रह्मा सरस्वती का दृष्टिगोचर। चौथा है आदिशक्ति जगदम्बा मांग में सिंदूर जो कि आदिशक्ति जगदम्बा का दृष्टिगोचर। पांचवा है किताब मांग में सिंदूर जो कि प्रत्येक यूनिवर्स के भगवान का दृष्टिगोचर। छठा है हिंदू गवर्नमेंट मांग में सिंदूर जो कि हिंदू गवर्नमेंट और चिन्ह जो कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के अन्य 6 राष्ट्रीय भवन यानी माइनॉरिटी राष्ट्रीय भवन का दृष्टिगोचर है। इसका यूट्यूब पर भी चैनल है जो कि आप सुन रहे हैं जिसका नाम है ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट OSMBI सेशन 1 to 100 इंग्लिश में है, 1 to 200 हिंदी में है, 201 to 225 मैथिली में है, 226 to 300 इंग्लिश में है, 301 to 400 हिंदी में है, 401 to 500 मैथिली में है, 501 to 700 इंग्लिश में है, 701 to 900 हिंदी में है। यह 814 व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सेशन देख रहे हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हो इसलिए क्योंकि जीवन अधूरा है। आज का जो जीवन है वह इतना कठिन है कि रोजगार अगर कोई सपोर्ट नहीं रहे तो बहुत मुश्किल तरीके से मिलता है और हमेशा जो है माथा पर टेंशन लगा रहता है। उस चीज़ को दूर करने के लिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम एक्ट बनाया गया है। कृपया आप लोग ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब ज़रूर खरीदें। ओमनो स्वैप पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन का 401 रुपये की किताब है और इसको थ्रू जाएँ। जैसे जैसे आप इसकी पढ़ाई करेंगे वैसे वैसे व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के बारे में आपकी जानकारी बढ़ती जाएगी। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट एक ऐसी व्यवस्था है जो अनंत आबादी को स्वरोजगारी सरकारी नौकरी में ढाल लेती है। विश्वास जगाने की आवश्यकता है। 2 शब्द ऐसे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी और इनकम वर्क। ये 2 शब्द ऐसे हैं जो विश्व के मानस पटल को चेंज कर देते हैं। आप समझिए कि आपका आय और काम व्यवस्थित हो गया। व्यवस्थित कैसे हो गया? कुछ आप कमा रहे हैं और कुछ सरकार ने इसको माना, उसी को मौद्रिक साख कहते हैं और उसी के लिए हम लोग कानून बनाने के लिए OSMB एक्ट 2001 लगा रहे हैं। अब जैसे ही हम लोगों ने सरकारी रूप पर इसको संवैधानिक मान्यता दे दी तो एक यूनिफॉर्म फिस्कल क्रेडिट टेबल तैयार हो जाता है। अब हमारा काम आसान हो जाता है। चाहे कितनी भी आबादी रहेगी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, वो सीधा जाएगी मंत्रालय में और अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसको साइन करेगी और वह फिस्कल क्रेडिट सैलरी उसे मिलने लगेगी। अब देखिए, जब हमने जीवन को 4 भागों में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में बांटा है 18, 32, 40, 58, तो जो हम जिस वर्ग में रहेंगे उसके हिसाब से हमें फ़ायदा मिलती है। अगर हम 58 के हैं तो 40 वाला पेंशन हमें आ जाएगा। अब कहेंगे कि पेंशन क्यों आया? पेंशन इसलिए आया क्योंकि जैसे आज़ादी आ गई 14 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ाद नहीं हैं और एक सिग्नेचर होते ही आज़ाद है। तो संवैधानिक महत्व ऐसा है कि संवैधानिक तौर से हम लोग अगर मान लेते हैं कि हम लोग कमा रहे हैं, स्वरोजगारी है, तो उसके हिसाब से अब अगर जब हम प्रशासनिक सेवा उस प्रकार से आ रहे हैं तो उससे पैसा आने लगा और जब पैसा आने लगा तो पेंशन आपको मिलने लगा। अब एक रेगुलर इनकम हो गया तो आपके पास सोचने की शक्ति आ गई कि हम इतना पैसा में कैसे चला रहे हैं। अब ये जो पैसा रहेगा सो लास्ट ब्रेथ तक रहेगा, इसलिए क्योंकि इसकी व्यवस्था ही इस तरह से की गई है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट बनाया ही गया है इस तरह से कि जो भी लागू हो वह जीवन पर्याप्त, ये नहीं कि बीच में छूट जाए। प्राइवेट सेक्टर में क्या है कि आपका बीच में छूट गया तो फिर प्रॉब्लम है, फिर नए तरीके से फिर से पकड़ो। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के कॉन्स्टिट्यूशनल बुक में लिखा हुआ है, वह कंटिन्यू करता रहेगा। अच्छा, आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं यहाँ से
कहीं भी, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, कहीं भी, हम सब व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम एक्ट 2001 शारदा बिल को पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और सभी विधानसभाओं में पारित करें। अमित ईश्वर झा के नेतृत्व में। धन्यवाद।